Good afternoon, all of you. Good afternoon. Okay. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What we are discussing in the last class? Creation of single linked list. Creation. So we have not completed, isn't it? Yes, ma'am. I have not shared my screen. Screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay. So now check. So we are discussing single linked list. So these are the few limitations of the array, and we have started with linked list. So the basic use of linked list is we can allocate the memory dynamically, and one node will contain the reference of the one node will contain the reference of the Next node. okay, next node of the same type. Okay, so that is why we are going with the linked list. So in linked list we are going to use a concept of class and object. So if my list is empty, the start will equal to Null. Null. null, and the last node of the list will contain a null in the link part. So the different operations are there. We need to discuss a number of operations. So I will again start with the creation. So creation, have you all remembered, or I should summarize it again so that I can continue with the next part? Ma'am, please summarize it Detail again. again, please. Okay. Ma'am, Huh. ma'am, I had a doubt in array limitation. What? Ma'am, in array whether it's static allocation or dynamic allocation. Array is a static allocation because you are assigning the memory at which time? You are creating the array. You are creating the array. ये जो array का space declare करते हो. Beforehand you are declaring that my array is this one, and ये जो line है. Just a minute. Let me come to this one. Okay, ये जो line लिखते हो. What does this line means? int a equals to new int 100. To create an array of size 100. हाँ, you are going to create an size of size 100. तो पहले से तुम लोग क्या कर देते हो? You are fixing the size of the array to 100. So this is your static allocation of the memory. But in case of linked list, are you fixing the size of the linked list? That I am going to create a linked list of size 100, 200, 300, something like that. No, ma'am. So this is so that is why it is known as your static memory allocation. Okay. So if you are Ma'am, going, हाँ बोलो. ma'am, but when we use new keyword, हाँ. it gives space in heap area, na? It will create space in the heap area. Ma'am, I have read somewhere that in heap area it's called dynamic allocation. In heap area. Yes, Yes, it ma'am. is. In heap area, we are creating the dynamic allocation. Look, array में हम लोग reference create करते हैं. I am not saying that array array में हम लोग क्या करते हैं? Reference use करें. We are creating the space पर new int लेकर reference create करते हैं. So whenever we are passing the array in a method, it is pointing to the same memory allocation, isn't it? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन हाँ, my point is that static allocation here means
that we are predefining the size of the memory. We are predefining the total size of the array beforehand. Okay, ma'am. Okay, that is my point. I am not saying that वो new keyword use करे वो heap area में वो reference सब create होता है. That is true. Everything is true. But static means here तुम लोग array का size क्या कर रहे हो? You are predefining the size of the array. Yes, ma'am. Okay, that is why it is called as static, or you can say it, or you can some way say that you are creating it at the compile time. You are defining the size of the array during the compile time. Okay. Yes, ma'am. So compile time में अगर जो भी create होता है उसे static बोला जाता है, and run time में जो भी create होता है that is called as dynamic. So in this way they are differentiating that array is a static one because you are predefining the size of the memory during the compilation of the program. Okay, but whereas in case of a linked list the size is not being predefined, and depending on the user requirement the size can be increased or you can decrease the size. Ma'am, हाँ. ma'am, suppose if we allocate the size of array as a variable, हाँ. and we will input that variable during runtime. जो भी हो तुम लोग क्या कर रहे हो रन टाइम में दे रहे हो वो डायनामिक है. यू आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ एन ड्यूरिंग रन टाइम दैट इज डायनामिक. लेकिन जो एलोकेट हो रहा है चीज आई एम टेलिंग अबाउट द जो एलोकेट हो रहा है एन भी कुछ वैल्यू प्री डिफाइन करोगे. यू आर डिफाइनिंग सम वैल्यू. Yes, ma'am. ओके सो वो क्या हो रहा है तुम लोग प्री डिफाइन कर रहे हो मतलब वो क्या हो जा रहा है दैट इज फिक्स्ड. यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू. Yes, ma'am. एन को तुम 10 ले रहे हो तुम उसे रन टाइम में दो ना कोई दिक्कत नहीं है. एन को 10 ले रहे हो वो फिक्स हो रहा है तो उस सेंस से वो क्या हो गया स्टैटिक ही हो रहा है. यू आर प्री डिफाइनिंग द साइज ऑफ द अरे. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द मेमोरी. यू आर प्री डिफाइनिंग द साइज ऑफ द अरे बिफोर हैंड. प्रोग्राम बनाने से पहले उसका साइज क्या कर रहे हो यू आर प्री डिफाइनिंग इट. Okay, ma'am. In So it that means sense that- it is in that sense it is called as your static. Okay. Okay, ma'am. So that means that the size of array cannot be further increased. We cannot further increase the size of once you have declared it. Okay, ma'am. Thank you. ओके तुम रन टाइम में दो तुम कंपाइल टाइम में दो जो भी टाइम में दो तुम साइज को क्या कर रहे हो फिक्स्ड कर रहे हो. यू आर फिक्सिंग द साइज ऑफ द अरे. ओके इफ आई वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द अरे आफ्टर डूइंग सम स्टेप्स मुझे 10 एलिमेंट के लिए मैंने अरे बना लिया है मुझे 20 एलिमेंट इंसर्ट करना है. तुम प्रोग्राम को टर्मिनेट करके फिर साइज चेंज करोगे. Yes, ma'am. ओके यू कैन नॉट डू इट इन द सेम प्रोग्राम. Yes, ma'am. Okay, that is in that way it is called as your static allocation. Okay, ma'am. Okay. Now should I move to the next part? Yes, ma'am. Okay, let me summarize the operations again so that we can easily conclude the creation part. I am erasing all this value because we have not written the entire code correctly. So initially my list is empty. So if my list is empty, start is equals to Null. null. This is my very first step of my program. So यहाँ पर start हो गया null. Okay, now I want to add a node to the list. अभी node add करेंगे. So in order to add a node, I am going to take a reference variable p that will refer to the memory location 1001. Okay, so in this reference variable ये जो memory allocation हुआ है डेटा पार्ट में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे बट which thing we are going to put in the data part 10. Value. n and in the next part we are going to put it Null. 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 ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप. उसके बाद हमें क्या करना है वी आर गोइंग टू चेक इफ द लिस्ट इज एम्प्टी. नाउ दिस इज गोइंग टू बी बिकम विच नोड ऑफ द लिस्ट
First. फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, आज इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, स्टार्ट में कौन सा रेफरेंस आना चाहिए, कौन सा लोकेशन का रेफरेंस आना चाहिए? 1001. सो स्टार्ट में 1001 का रेफरेंस आना चाहिए. So in order to have 1001 in the step 3 it is being written, if start is equals to null, then start is equals to p. तो start में यहाँ पर कितना आ गया 1001. Okay, so after step number 3 my list will look in this manner. Start 1001, here we are going to have the value 10, यहाँ पर null, and this is 1001. Again p is also holding the same reference 1001. Okay, after step number 3, are you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I want to insert another node to the list. मुझे और एक node insert करना है. So instead of taking new name for the references, we are using the same node p, because ये override नहीं होगा, क्योंकि ये जो previous node है, previous node का reference कहाँ पर save है? It is already there in the start. हाँ, otherwise it will be there in the next part of the previous node. Okay, so यहाँ पर जब when we are going to write node p equals to new node, this line is going to be deleted. Now p, it will refer to the new memory location. Let the reference here is 1020 और p dot data में हम लोग 20 डाल देंगे, p dot next में null डाल देंगे. Okay, so now we are going to check if the list is empty or not. फिर से क्या होगा, कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा? लाइन नंबर 3. So if start is not equals to null, then ये नोड कहां पर आएगा तुम्हारा? This node will be after which node? Start. Start के बाद आएगा कि 10 के बाद आएगा? The 20 will come after which node? मैम फिर से बोलिए ना, वो पहले मेरे साथ. देखो, इनिशियली मेरे स्टार्ट में कुछ भी वैल्यू नहीं था, मैंने पहला नोड एलोकेट किया, p में एक नया रेफरेंस आ गया 1001, उस मेमोरी रेफरेंस के डाटा पार्ट में मैंने डेटा पार्ट में 10 डाल दिया है, रेफरेंस पार्ट में या फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या डाला गया है? नल, because I don't know whether it is the first node of the list or it is the last node of the list. Okay, then we are going to check if my start is empty, 10 will become the फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट. अगर ये फर्स्ट नोड बनेगा तो स्टार्ट में कौन से नोड का रेफरेंस आना चाहिए, कौन सा एड्रेस आना चाहिए? 1001. 1001. सो यहाँ पर बाय राइटिंग दिस लाइन स्टार्ट इज इक्वल्स टू p, स्टार्ट में 1001 आ गया. हो गया? Yes, ma'am. आर यू? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो बस एक नोड नहीं रखना है ना लिस्ट में, because we are going to allocate a number of elements to the list, isn't it? Yes, ma'am. तो उसके बाद मैं फिर से और एक नोड लूंगी, और एक नोड लेने के लिए मैं दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट नेम यूज नहीं कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट नेम p. सो व्हेन आई एम यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट नेम p से 1001 का रेफरेंस हट जाएगा. ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेट हियर वी आर हैविंग 1020. आर यू क्लियर? यस. तो अब इसके डेटा पार्ट में तुम क्या डालोगे? 20. यहाँ पर 20 लिखा गया है, मैं 20 डाल दी हूँ. p डॉट नेक्स्ट. अब मुझे पता नहीं है कि ये नोड मेरा पहला नोड होगा कि आखिरी नोड होगा कि कौन सा नोड होगा, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या डाल दिया गया है? नल. ये नोड बन गया. अब ये नोड को तुम किसके बाद डालोगे, कौन से नोड के बाद डालोगे? 1001 के बाद. 1001 के बाद डालोगे. अगर ये नोड को 1001 के बाद डालोगे तो ये इस नोड का रेफरेंस कहाँ आना चाहिए? Start dot 1001. next. हाँ, 1001 के नेक्स्ट में आना चाहिए. तो 1001 कहाँ पर सेव है? Start dot start.
स्टार्ट में सेव है तो क्या लिखोगे? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 102 हाँ और 1001 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 1020, यही लिखोगे ना? इन ऑर्डर टू पुट यहाँ 1001 के नेक्स्ट पार्ट में 1020 डालने के लिए। मीका, yes ma'am. कुछ डाउट है? मैम हाँ बोलो। बोल देंगे, रिपीट कर देंगे मैम। मैम? ये जो 100 डॉट नेक्स्ट वाला, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से बना रही हूँ। ये हो गया स्टार्ट, यहाँ पर मेरा कितना आ गया 1001, यहाँ पर क्या है 10 है, इसका रेफरेंस क्या है 1001, दैट इज देयर इन स्टार्ट। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में क्या है? दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज द डेटा पार्ट। ओके, दिस इज द एंटायर नोड। आर यू क्लियर? यस मैम। पी मेरा नया नोड बना है, एक मैं नो लोड नहीं हूँ, तुम्हारा ट्रेन है, इंजन हो गया, तुम पहला नोड डाल दिए, दूसरा कोच ला रहे हो, दूसरे कोच को किसके बाद डालोगे? पहले के बाद। पहले कोच के बाद उसको डालोगे, है कि नहीं? यस मैम। अगर पहले कोच के बाद डालोगे तो उस लिंक किस किस के बीच में होना चाहिए? फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो फर्स्ट का नेक्स्ट के साथ हाँ। उसका डाटा। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच लिंक होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच लिंक कैसे आएगा? ये जो नेक्स्ट पार्ट में, जो एड्रेस पार्ट में, तुम किसका एड्रेस डालोगे? सेकंड का। सेकंड का एड्रेस डालोगे। तो ये जो फर्स्ट के एड्रेस पार्ट में यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? ये क्या है 1001 डॉट नेक्स्ट है कि नहीं है? यस मैम। अच्छा, ये 1001 डॉट नेक्स्ट है, लेकिन जब तुम प्रोग्राम लिखोगे मेमोरी लोकेशन का नाम लिखोगे क्या? वहाँ पर उसका स्टार्ट, वो स्टार्ट है 1001 स्टार्ट में है, तो इसलिए स्टार्ट डॉट तो हाँ, तो 1001 कहाँ पर प्रेजेंट है? स्टार्ट में है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1020 लिखोगे। हाँ 1020। यस मैम। ठीक है, 1020 कहाँ पर है? पी में। पी में है, तो यहाँ पर स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या लिखोगे? पी। स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पी। समझ में आया? यस मैम। मीका? यस मैम, क्लियर पूरा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये नल को हटा के यहाँ पर अभी क्या आएगा? 1020। 1020। तो ये लिंक ऐसे अभी तुम्हारा एस्टैब्लिश हुआ। Okay, so after the completion of step number 4, your list will look in this order. ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया 1001, this is 10, 1020, ये 1001 एड्रेस है, then this is 20, this one is not, ये 1020 है। ओके, यस मैम। अब मुझे और एक नोट डालना है, और एक नोड में कहाँ पर डालूंगी? लेट दिस इज माय नोड, ये नोड को मैं कहाँ पर डालूंगी? वो 1020 के बाद। 1020 के बाद डाला जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगी? 1020 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू 1040। ठीक है, ये कहाँ पर रहेगा? अब फिर से हम लोग नोड एलोकेशन के लिए कौन सा 3 लाइन लिखेंगे? सेम नोड p इज इक्वल टू न्यू नोड। नोड p इक्वल्स टू न्यू नोड, p dot data is equals to 30, p dot next equals to, ठीक है। अब
ये जो एड्रेस कैसे कॉपी करेंगे बताओ। यहाँ पर हमें पता है 1020 के नेक्स्ट में कितना आना चाहिए? 104 10। 1040। कैसे लाएंगे मुझे बताओ। मैम स्टार्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। फिर अगर हम लोग और एक नोड ऐड करेंगे फिर क्या करेंगे? एक और बार नेक्स्ट। अगर ऐसे ही करके 100 नोड्स ऐड करना पड़ेगा, क्या करेंगे? कितने टाइम नेक्स्ट लिखोगे? डॉट नेक्स्ट। 100 टाइम। हाँ 100 टाइम्स। तो बीच का रास्ता निकालो। मैम हम लोग हर बार स्टार्ट डॉट नेक्स्ट को कहीं स्टोर कर लेंगे। मैम हर बार हम लोग स्टार्ट डॉट नेक्स्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। हर बार स्टार्ट डॉट नेक्स्ट को कौन से वेरिएबल में? मैम फॉर एग्जांपल पी तो बार बार स्टार्ट बदल रहा है तो p1 हाँ। करके कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड। तो हम लोग हर एक बार जब भी नया नोड ऐड करेंगे वो नया नोड का रेफरेंस हम लोग और एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, तो बनाने के लिए आसान रहेगा ना। यस मैम। ओके, आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम स्टार्ट में चेंज कर सकते हैं स्टार्ट डॉट नेक्स्ट को। नहीं, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट को हम लोग चेंज करेंगे। तुम लोग बोलो स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड ऐड करोगे। नो स्टार्ट में मतलब हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, इनिशियलाइज करके बार बार इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्ट को। नहीं, अगर स्टार्ट को बार बार चेंज करेंगे तो पता कैसे चलेगा लिस्ट हमारा कहाँ से शुरू होगा? स्टार्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक। हाँ ठीक है, स्टार्ट को अगर चेंज करेंगे स्टार्ट इधर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर Yes, पहला नोड कौन सा बन जाएगा? 20। तो हमेशा Yes. लिस्ट में कितना ही एलिमेंट दिखाएगा? एक ही एलिमेंट दिखाएगा। यस। ठीक है, तो हम लोग और एक वेरिएबल लेंगे। वो वेरिएबल क्या करेगा? जो नया नोड एलोकेट हो रहा है वो वेरिएबल में उस नोड का एड्रेस रहेगा। ठीक है, यस मैम। तो वहां उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ना क्यू, एक वेरिएबल ले लेते हैं अलग से, वेरिएबल क्यू इक्वल्स टू पी, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस मैम। Okay, so can we write in this order q equals to p? देखो तो सबको समझ में आया? Why we are going with another variable q? यस मैम। Okay, देखो again I am repeating it from start. मैं फिर से start से शुरू कर रही हूँ। Start is null. So this step p 1001 10 यहाँ पर हो गया null. So if start is equals to null, the condition is true. If the condition is true, start is equals to p. तो स्टेप के बाद स्टार्ट में आ जाएगा 100। यहाँ पर कितना आ गया? 10. Here we are having null. तो 1001। अब q is equals to p. अब q में भी कौन सा वैल्यू होगा? 1001। Okay, p will hold 1001. This is after step number 3. ये step number 3 का डायग्राम है। फिर again in order to allocate new node p equals to new node, so यहाँ पर क्या करेंगे? p 1020, this is 20, यहाँ पर आ गया null 1020. So ये क्या हो गया? This is my new node. तो डाटा पार्ट में डेटा डाल दिए, नेक्स्ट में नल डाल दिए। Now as this is going to be the second node of the list,
यहाँ पर स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या लिखा गया है? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू 1001 dot next equals to p. So instead of start dot next, can I write here q dot next equals to p? Yes, ma'am. Can I rewrite it in this order? Q dot next equals to p. So instead of start, here I am rewriting it as q dot next is equals to p. उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1020 और q को कितना अपडेट करोगे? What will be the new value for q? Q equal P. Yes. Q equal P. Next is q is equals to p. Okay. So after step number 4, your list will look in this way. Start 1001. This is my 10. 020. This is my 20. यहाँ पर null आ गया 1020. This one is my q 1020. He is having the same reference 1020. If I want to create another node, और एक node create हुआ है यहाँ पर, so ये node creation हो गया. Now this line will be deleted. In P will have 1004. ठीक, यहाँ पर 30 डाल दी, यहाँ पर null. अब 1004 किसके रेफरेंस में आएगा? q dot next. So for this we are going to write q dot next is equals to p. Then q को कितना अपडेट करेंगे? p. Q equals to p. So if we are going to write in this way, can I add 100, 200 nodes to the list without any problem? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we will go for the algorithm. Should I move to the algorithm part? Yes, ma'am. Are you clear, all of you? मैम पिछला वाला q डॉट नेक्स्ट का वैल्यू कॉपी कर रहा है ना पीछे। हाँ, q डॉट नेक्स्ट अभी कहाँ पर है तुम्हारा q? q में क्या है? इनिशियली q हमेशा कौन से नोड का वैल्यू रखेगा? एक पहले वाले का एड्रेस। नहीं, जो नोड बाद में ऐड हुआ है उसका रेफरेंस कौन रखेगा? Q. हाँ, ये Q भी तुम्हारे स्टार्ट के तरह का ही है. Let me increase the size first. तुम्हारा Q नोड स्टार्ट के तरह का ही है, P नोड के तरह का है. उसमें बस क्या रहेगा? रेफरेंस रहेगा. इट विल ओनली कंटेन द रेफरेंस ऑफ द नोड. ठीक है. ये देखो Q में तुम्हारा क्या रह रहा है? In Q, what you are having? जो लास्ट नोड है उसका रेफरेंस रह रहा है. सो इफ आई एम राइटिंग q डॉट नेक्स्ट मतलब क्या है? 1020 डॉट नेक्स्ट. तो यहाँ पर क्या कॉपी करोगे? 1004. सो यहाँ पर 1004 कॉपी हो जाएगा. सो इट विल कम हियर एंड q को फिर क्या कॉपी कर दोगे? अब q में किसका रेफरेंस रहना चाहिए? 1004 का. So in Q we are going to have the reference of 1004. Are you clear? Yes, ma'am. बोलो. नहीं कुछ नहीं क्लियर है। नहीं डाउट है, यदि अगर है डाउट पूछो.
कुछ डाउट है? मैम तो अभी हर बार वहाँ क्यू डॉट नेक्स्ट लिखना पड़ेगा, वो जो हाँ। हम चेक करते हैं वहाँ पर इफ स्टार्ट इक्वल हाँ। वो जो चेक करते हैं, चेक के हाँ। बाद वो लिखना पड़ेगा। हाँ, ये 2 लाइन लिखना पड़ेगा, q डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू p एंड q इक्वल्स टू p। अगर ये 2 लाइन लिखेंगे हम लोग हमेशा नोड को कहाँ पर ऐड करेंगे? नेक्स्ट मतलब उसके लास्ट, हाँ, ए लास्ट जो लास्ट नोड है उसके बाद ऐड किया जा सकता है। ठीक है, मैं प्रोग्राम दिखा देती हूँ तो तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एल्गोरिदम लिख लूँ इसका पूरा? यस मैम। Yes. हाँ, ये सब डायग्राम बनाए हो तो तुम, हैव यू डन दिस डायग्राम? नो मैम, वेट। नहीं बनाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इट विल बी, जब सम याद नहीं आएगा डायग्राम देख लेना, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर। दिस वन इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप 2, 3 में ये बनेगा, दिस इज योर 4th स्टेप। ओके, ओके मैम। so I am moving to the algorithm part. Check the code, then मैं प्रोग्राम लिखूंगी। डिस्प्ले करने के बाद प्रोग्राम लिख दूँ देती हूँ, तुम लोग देख लेना। So here I am writing the pseudo code, static void create। इस मेथड से पहले तुम्हें इनिशियलाइज करना है स्टार्ट static node start is equals to null and q equals to null, और एक क्लास डिफाइन करोगे, क्लास नोड int data node next। ओके, सो स्टैटिक void create यहाँ पर आ गया, if node p is equals to new node p dot data is equals to item, ये यूजर इनपुट होगा, p dot next is equals to null। okay, then check if start is equals to null, it means my list is empty. This line will execute only once when your list is empty, and if it is true, then start is equals to p and q is also equals to p. If my list is not empty, then q dot next equals to p and q is equals to p. This much. It is the code for creation. अगर ये जो प्रोग्राम लिखोगे, ये प्रोग्राम तुम्हारा कितने बार रन करेगा ये मेथड? जितने बार नोड क्रिएट हो, एक ही बार रन करेगा, एक ही नोड बनाएगा। तो ये मेथड को अगर तुम बार बार कॉल करोगे, इट विल रन एंड इट विल क्रिएट द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू क्रिएट द लिस्ट। ओके, तो इसको हम लोग लूप में भी डाल सकते हैं। आई विल शो इट इन द प्रोग्राम, बट द एल्गोरिथम पार्ट इज ओनली दिस मच। सुडो कोड इतना ही रहेगा। ओके, Yes, ma'am. so next write down the traversal part. Have you noted it down? ये कोड लिखे? मैम q dot next is equal to p और q is equal to p, दोनों क्यों करें? दोनों क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर देखो ये डायग्राम, यहाँ पर q कहाँ पर था? 30 ऐड करने से पहले 30 मेरा नया नोड बना है, so I will just remove this line। okay, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? नल। ये क्या हो गया तुम्हारा?
क्यू, क्यू में अभी कितना है तुम्हारा? व्हाट इज द वैल्यू एट क्यू? हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। समझ में है ना? तो यहाँ पर 1020 नेक्स्ट में पी डालेंगे एंड क्यू में कौन सा वैल्यू डाला जाएगा? 1004. Okay. So check the traversal algorithm. This is start. Now I want to print the elements present in the list. So elements present in the list print करने अगर लिखेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए? The output should come in this order: 10, 20, 30 and 40. Okay, so how we are going to start? क्या लिखेंगे so that it will print 10, 20, 30, 40? कहाँ से शुरू करेंगे? स्टार्ट डॉट डेटा। स्टार्ट से, सो टेक अ वेरिएबल, हाँ स्टार्ट से शुरू करेंगे, सो टेक अ वेरिएबल s इज इक्वल्स टू नोड s इक्वल्स टू स्टार्ट। s ले सकते हो, p ले सकते हो, जो भी लेना है ले सकते हो। s इक्वल्स टू स्टार्ट, सो s कहां पर रहेगा? 1001। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? s डॉट प्रिंट, s डॉट डेटा प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम लोग कहां पर जाएंगे? s डॉट डेटा प्रिंट हो गया, उसके बाद हम लोग कौन से नोड को जाएंगे? 1020 को जाएंगे। सो 1020 को जाने के लिए क्या लिखेंगे? s में क्या अपडेट करेंगे? s इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट 1001 डॉट नेक्स्ट, और वी कैन राइट हियर s डॉट नेक्स्ट। सो अब s आ गया यहाँ पर 1020, तो पहले 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद 20 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर s डॉट नेक्स्ट मीन्स s विल कम हियर 1040, 30 प्रिंट होगा, फिर s डॉट नेक्स्ट s विल बी हियर 1004, 40 प्रिंट हुआ, फिर s में कितना आ जाएगा? s डॉट नेक्स्ट लिखेंगे तो नल आ जाएगा। अब और हमें प्रिंट करना है वैल्यू। नो मैम। सो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है तुम्हारा? इफ s is equal to null, then s is equals to null, then terminate. So here while what we are going to write, s is not equals to null. null. खत्म। your traversal algorithm, void display or traverse. Are you clear all of you? Yes, ma'am. Okay, should I move to the coding part? Yes ma'am. Yes. सागर, नो मैम, अभी क्लियर है, मतलब तभी सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक विद द कोडिंग।
structure. Okay, here I am writing as we are going to import the value from the user. Dot scanner. यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करो, क्लास देखो नोड, एक क्लास डिफाइन हो रहा है नोड, बस इसमें दो ही चीज रहेंगे, डेटा और एक क्या रहेगा, नोड नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर हमें क्रिएट फंक्शन लिखना है, सो void create, so this is a static function we are going to define, static void create। ओके, सो यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, static node start equals to null, so the next one is your static node क्या होगा, q एक वेरिएबल लिए है, q इक्वल्स टू नल। यहाँ पर scanner sc इक्वल्स टू new scanner system dot in, then no, in order to allocate the node p equals to new node। अब हम लोग डेटा इनपुट करेंगे, सो दिस लाइन एंटर वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, p डॉट डेटा इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int and p dot next is equals to null। Okay, then if what is the condition, start is equals to null, then my list is p, then start is equals to p, q is also equals to p। हो गया, if my list is not empty तो कौन सा क्या कोड लिखोगे, q dot next equal p, q dot next equals to p and q is equals to p। हो गया, अब ट्रावर्सल का static void towers और display, whatever you can write, और so कुछ भी लिख सकते हो, so node s is equals to start, while s is not equals to null, जब तक null नहीं होता है we are going to print the value s dot data। एक मैं डाल देती हूँ, s is equals to s dot next। Okay, now in main function में क्या करेंगे, create and display, एक नोड क्रिएट होगा, डिस्प्ले होगा, देन अगेन इफ यू आर गोइंग टू कॉल द क्रिएट मेथड, और एक नोड क्रिएट होगा, फिर डिस्प्ले होगा।
यहाँ पर मैं ट्रैवल्स लिखी हूँ ना, ओके हो गया। ये देखो, इट इज आस्किंग फॉर एंटर द वैल्यू। मैंने अभी कितना वैल्यू एंटर किया? 10। तो हाउ मेनी नोड इट इज बीइंग क्रिएटेड? 1. एक नोड क्रिएट हुआ है। फिर मैं 20 इनपुट करूंगी। अब कितना नोड क्रिएट हुआ? 2 नोड। दो। सो तुम यहाँ पर क्रिएट मेथड 2 बार कॉल हुआ है बोल के 2 बार नोड क्रिएट हुआ है एंड 2 टाइम डिस्प्ले हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हर एक टाइम में जितने बार भी मेथड कॉल करोगे कितना नोड क्रिएट होगा? इफ यू आर गोइंग टू कॉल द मेथड फॉर n टाइम्स देन नोड विल बी क्रिएटेड फॉर n टाइम्स। अब देखो, मैं चाहती हूँ कि एक साथ मैं पहले नोड क्रिएट कर दूंगी, जब तक मेरा मन करेगा उसके बाद ट्रावर्स करूंगी। ओके, सो फॉर दैट व्हाट कैन आई राइट? लूप बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लूप एक बना रही हूँ। देखो, डू, यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लेती हूँ, ch, डू वाइल लूप में बना दे रही हूँ। सिस्टम out.println, यहाँ पर पूछेगा is y और कैपिटल Y to continue, ch is equals to sc dot next, क्या होगा? dot char at 0. file ch is equals to y और ch is equals to ओके। मैम हम हाँ, वो मेन फंक्शन में लूप नहीं बना सकते क्या? मतलब जैसे कि कितना कुछ जितने बार तुम एंटर करना चाहते हो फिर उस हिसाब से लूप उतने बार कॉल हो जाएगा ये दोनों में से। हाँ, ये जो लाइन है तुम मेन फंक्शन में भी डाल सकते हो, कहीं पर भी डाल सकते हो। ये जो लूप पार्ट है, okay, you can put it anywhere, but here I have put it in which function? मैं create में डाल दी हूँ। create का कोड बस इतना ही है। this is the code for the creation, okay? ओके मैम। and ये पार्ट को ये it depends on you, you can put it in the main function। मेन फंक्शन में ये जो क्रिएट मेथड है लूप के अंदर डाल सकते हो, अदरवाइज इन क्रिएट मेथड यू कैन राइट दिस वे। यस मैम। ओके, सो अगेन आई विल रन द कोड। मैं फिर से कोड रन कर रही हूँ। देखो, एंटर द वैल्यू 10, अगेन एंटर द वैल्यू 20, 30 या 40। इफ आई हिट एनी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 10, अभी ये क्या हो गया? वाई, इट इज जस्ट डिस्प्लेइंग द लिस्ट। सो आइटम कहाँ पर ऐड हो रहा है? ऑल द आइटम्स आर बीइंग एडेड टू द नोट्स, last nodes of the list. Okay, are you clear up to this part? यस मैम। Are you clear all of you? हाँ, पूछो। स्क्रॉल करिए ना ऊपर। हाँ, ऊपर स्क्रॉल करिए। देखो, here one thing I have done, I have not taken any parameter, I have not taken any return type, I have written in the simple function. Okay, so as I have not passed any parameter or I have not written any value, यहाँ पर मैंने नोड को क्या डिक्लेयर कर दिया है? स्टैटिक। Here the node it is being declared as static.
So all of you note down this code because you are going to run it simultaneously. और लैब का जो असाइनमेंट है उसे तुम लोग खुद से बनाओगे, एक एक पार्ट बनाते जाना, जितना मैं बता रही हूँ इन द सेम मैनर यू आर गोइंग टू डू द असाइनमेंट. So for that, just a minute, I will show you the assignment 4. Where is the lab assignment 4? ये देखो असाइनमेंट एक बार देख लो so that you will not confused. It is your entire program. ये क्लास डेफिनेशन है, यहाँ पर क्रिएशन बोला गया है. ओके, इंसर्ट बिगनिंग एंड एट स्पेसिफिक, डिलीशन बिगनिंग एंड एट स्पेसिफिक, फिर सर्चिंग, shorting, count, reverse, display. So these are the operations or these are the assignment for your lab assignment 4. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या की हूँ, I have not taken any return type or any parameter, isn't it? Yes. So you can go in this way also, there will be no issue. वैसे ही बनाना, it is the simplest one. अगर यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, देन यू नीड टू वहां पर ना मेन मेथड में स्टार्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा. एंड यू एवरी टाइम यू नीड टू रिटर्न स्टार्ट हमेशा करोगे. सो यू बेटर गो विद दिस वन, इट इज द सिंपलेस्ट वन टू रिमेंबर ऑल्सो. ऐसे ही प्रोग्राम बनाना. बस यहाँ पर मैंने डेटा लिया था, यहाँ पर कितना फील्ड लिया गया है, 2 data. रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मार्क्स. देन राइट हियर नेक्स्ट. ओके, इन द सेम मैनर यहाँ पर डेटा बस और एक वैल्यू क्या एंटर करोगे, float registration number, and rest of the code will be as it is. Okay, Yes. in this manner you just do your program. Have you noted down the code? Because every time मैं इसी कोड में ही चेंजेस करूंगी. एवरी टाइम यहाँ पर एट द एंड क्या होगा, तुम्हारा एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनेगा. ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम वी विल डिस्कस इट इन द लैब इटसेल्फ. जो बोल रहे थे, हाँ ये वही लूप में होगा, वो बताऊंगी मैं लैब में बताऊंगी. व्हाट इज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. हम ये वाला असाइनमेंट भेज दीजिए. हाँ, असाइनमेंट भेज दूंगी. मैम नीचे स्क्रॉल कर लीजिए. हाँ, मैम थोड़ा सा और नीचे. मैम हाँ, मैम जो हम लोग ये p डॉट डेटा के बाद p डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर रहे हैं, उसको अगर नहीं लिखेंगे तब भी तो काम चल जाएगा ना, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर हाँ. डिफॉल्ट. हाँ ये नहीं लिखा, हाँ वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, वी डोंट नीड इट. बाय डिफॉल्ट इट विल सेट द डिफॉल्ट वैल्यू. और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, तुम्हारा नल ही है. यस. हो गया सबका.
बन गया सबका? Should I go to the next program or next part? Have you all completed or you are writing still? Writing. Okay. Over. Yes. Should I move to the next part? Yes. Okay, check here. Next part is the to count. Count का है method. तुम लोग खुद बता सकते हो मुझे. We will do the program in the next class. It's already time. एक ही मिनट लेगा, देख लो. How you are going to count the number of elements present in the list? क्या करोगे बताओ तो? जब तक नल नहीं आएगा तब तक चला देंगे और काउंट कर देंगे. हाँ, बस एक वेरिएबल क्या लोगे? काउंट इज इक्वल्स टू 0. और कहां पर, यहां पर काउंट क्या करोगे? काउंट प्लस प्लस. प्रिंट के जगह कौन सा लाइन लिखोगे? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. एंड लूप के बाहर क्या लिखोगे? प्रिंट एलन काउंट. ओके, so you just try this code. Again we will discuss the insertion, deletion in the next class. Thank you all.